first I would like to start with complimenting you with the narration. I think it was really good. And I really like the questions you are asking and the facts that you put across in front of everybody. So I think that was a great narration. Thank you. Yeah. Secondly, I would like to question what is the role of Parambir Singh when you become a commissioner Correct. of Mumbai? What is your role? Is your role to basically keep listening to what the politicians are speaking? What is your role? The very basic fact that in February, Sushant Singh Rajput's brother-in-law sent him messages warning that Sushant's life, he was worried about Sushant's company, what he was surrounded with. What did Parambir Singh do? His colleague is asking him. No, he didn't send the message to Mr. Parambir Singh. So that's what we saw in WhatsApp. No. You are confused. Okay. It was not to Mr. Parambir Singh. It was sent to a DIG rank officer, not Parambir. I mean, whatever, senior rank officer. Yes, he was. Yes, that was ignored, completely ignored. That is fact. So CBI should start from there. Why was it ignored? Why isn't CBI probing that? Yes, the family has made it very clear कि उन्होंने warn किया था कि his life is in danger. Yes. So then this situation wouldn't have occurred if they would have taken some action. So that means so there is one statement, one clear warning by the brother-in-law of Mr. Sushant Singh Rajput, saying that Sushant's life is in danger. You need to take steps to ensure that he is protected completely. This was a forewarning. आपको पहले से warn किया गया था, correct? आपको बताया गया था कि उसकी लाइफ जान खतरे में है. बावजूद उसके आपने कुछ नहीं किया. वो शख्स 14 तारीख को मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर जाता है और आप आधे घंटे के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि वो सुसाइड है, जबकि आपको अप्रैल में ही बता दिया गया था कि उसकी जान खतरे में है. आपने उस वार्निंग को इग्नोर किया और एक पॉसिबिलिटी कि शायद ये सुसाइड नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया क्योंकि आपकी जिद थी नहीं करेंगे. आप मोहन डेलकर केस में कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया 55 दिन तक. और जब बिहार पुलिस ने किया, आपने उसको कोऑपरेट नहीं किया. सीबीआई ने रजिस्टर किया, तो सीबीआई के साथ भी आपने कोऑपरेट नहीं किया होगा, ऐसा लगता है. Yes, Manny, go ahead. Yes, sir. So, sir, my basic question is this only, that Parambir Singh is very easily saying that Anil Deshmukh has interfered in all the cases. But what is his role? Is he role just to listen? He is the police, na? He is the senior most person. यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है. उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट में कहा है कि I refused to accept the proposal made by Mr. Anil Deshmukh. यानी अनिल देशमुख ने जो इंस्ट्रक्शन दिया मोहन डेलकर केस में, मैंने मना कर दिया कि मैं इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करूंगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का. क्यों? क्योंकि वो उसका जो बनता है जुरिस्डिक्शन वो दादरा और नागर हवेली बनता है. तो आपने एक इंस्ट्रक्शन तो मिनिस्टर का मना कर दिया, लेकिन बाकी मान लिया. ये कैसे हो सकता है भाई? Exactly. So there is basically each one is blaming the other. And I think which CBI is good for this case, which is good for yes. So ऐसे ही होता रहेगा. आप देखना आगे होता है क्या. अभी दीनो मोरिया एंड ऑल के नाम भी आए हैं, फिर आप बोलोगे ये सब मतलब कि हम शुरू से ही ये स्पेक्यूलेशंस में जो जिन के नाम आ रहे हैं वो सब केसेस में उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर में तो सब एक के बाद एक आ रहे हैं. मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ इस केस का. नो सर, दीनो मोरिया ये केस है सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ का. I want to know the fact related to this case. 14th of June 2020, what happened? I want to know that. Yes. As simple as Dino Moria and all जिनका नाम आया था, अब ED is investigating them ना about money laundering and all that. That is money laundering. Again, I'm coming back. मुझे सिर्फ एक केस में इंटरेस्ट है, that is सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस में. आप मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करो, आप नार्कोटिक्स केस को इन्वेस्टिगेट करो. That is all side cases. It may be interconnected also. It could be, but I want to know exactly what here is the situation. मानी समझिए, कुछ फैक्ट्स हमें इस केस से रिलेटेड हमारे पास सामने है, यानी सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस से रिलेटेड है. मेन केस तो यही है, इसी में लोगों को जस्टिस चाहिए. तो इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन की भरमार हो गई है. परमबीर सिंह, मिस्टर परमबीर सिंह इज लाइंग वेरी क्लियरली. मिस्टर अनिल देशमुख इज लेफ्ट, बट मिस्टर अनिल देशमुख मे हैव इन्फ्लुएंस्ड द केस, ऐसा लग रहा है. सीबीआई इज क्वाइट एंड नॉट इवन सेइंग कि इस केस में उनके साथ कोऑपरेशन नहीं हुआ. बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेशन नहीं हुआ, क्लियर है. सेम मुंबई पुलिस मोहन डेलकर केस में एफआईआर रजिस्टर कर रही है, लेकिन इस केस में नहीं करना चाहती. क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी. सरकार है, जो हम चाहे वो करेंगे, हम तो सरकार हैं.
तो भाई अनिल देशमुख कल सरकार थे तो पुलिस वालों को समझा लेते, न मिस्टर परमबीर सिंह होते, न ये केस होता, न आपके अगेंस्ट में एफआईआर होता, न इतनी सारी कंट्रोवर्सी होती। जिनका साथ दिया आपने, उन्होंने ही आपके लुटिया डुबाया। क्यों? क्योंकि आपने गलत किया था। आपने इस केस में गलत किया था, इस सबके सामने। यस, गो अहेड। So another thing I wanted to actually talk about was Sushant Singh Rajput's career, जो आपने movies के बारे में बताया है. So I want to tell you that he actually did 11 movies, not 12. I think 12th movie could not be released. There is 12th. No. So I'll just make it clear. 12th movie is Welcome to New York, where he did a 2-minute cameo, where he was mistaken as MS Dhoni. It was just a 2-minute cameo role, so that movie is not his movie. अगर मैं नहीं बोल रही है ना 11, तो मैं भी मान लेता हूँ 11. Yes, ऐसा 11 ही है. अच्छा, फिर मैं मार्क्स देना चाहती हूँ ना सुशांत सिंह राजपूत को. So you gave him... आज का शो मार्क्स वाला नहीं है. नहीं. No, I want to talk about facts only. Yes. No, because in the beginning you spoke about his performance. I did. उसका रीजन है. मैंने इस बीच में देखा किसी को, कंटेम्पररी को, यार 26 फिल्में मिल गई हैं. 26. एक भी फिल्म हिट नहीं है. 26 फिल्में मिल गई यार. आपने 26 फिल्में दे दी, एक भी फिल्म हिट नहीं है. एंड ही इज सपोज्ड टू बी अ वेरी सीजन्ड एक्टर. अब भैया कौन सा सीजन एक्टर है जिसने 26 फिल्में कर ली, एक भी हिट नहीं है? और ऐसी कोई फिल्म नहीं है. अगर अवार्ड मिलना है तो सुशांत को भी अवार्ड मिलना चाहिए था. उसको क्यों नहीं दिया आपने अवार्ड? केवल अवार्ड, एक शख्स को एक अवार्ड मिल जाएगा तो आप उसी अवार्ड के बेसिस पे 27 फिल्म दे देंगे. और यहाँ पर एक आदमी है जो एक्टिंग भी अच्छी कर रहा है, आप उसको अवार्ड डिनाई कर रहे हो, उसकी हिट फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर कर रहे हो और बोल रहे हो वो नालायक है. No. So, sir, another thing I want to say is that Sushant Singh Rajput's 9 movies got released in cinema. 9 movies. Out of that, 6 of his movies were super hits. 6 out of 9. Okay. And only 2 movies got released on OTT. One was Drive and one is Dil Bechara. And we all know how well Dil Bechara did. So, out of 11 movies, actually Sushant, 7 movies were super. I mean, no, hits. That's not correct. 6. That is correct. No, I'm sure on 6. No. I can read 7. the list out. मैं लिस्ट करके सुना दूंगा. So मैंने लिख के रखा है. हाँ, बताइए कौन सी फ्लॉप है? डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी. हाँ, वो हिट है. No. डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी. It is a hit. No, yeah, it's not. Hit. No, yes, it's hit. According to the list, it's hit. Okay, then maybe 7 movies of his were hit because मेरे उसमें वो नहीं है. He was disappointed about Bhumkesh Bakshi. But anyway. It was a superb film, according to me. Brilliantly acted. Yes. It was too good. Then another movie was Rabta, which again I really liked. 1 was flop, yes. Yes, and then Son Chidiya. 2. And OTT platform I'm not going to count because you don't really get to know. 3. ठीक है, even if you count that 3. हाँ, तो then 11 movies में से 3 are flops and rest all are hits. कौन सी फिल्में थी जो उसने की थी बताइए? Sir, Kaipoche. Yes. Shuddh Desi Romance. Yes. 2. PK. Yeah. Detective Bhumkesh Bakshi. Correct. MS Dhoni. Correct. Rabta. Good reckoner for all those who are listening. Please don't ignore this. This is a very good thing. सुशांत के बारे में कुछ अच्छी चीजें भी हमें बीच-बीच में बात करनी चाहिए. So it's a very good part of this show कि हम लोग केस के बारे में फिर दोबारा आ जाएंगे. Don't worry, don't be in a hurry. हम लोग वापस आ रहे हैं. Namrata is ready with the questions. Others are also there. I think Bhavesh is there and also Senthil is there. So we will talk about the case. Listen to this. This is interesting. This is about Sushant. Yes, go ahead. Yes, sir. राब्ता के बाद केदारनाथ. केदारनाथ, correct. सोन चिड़िया. Yes. छिछोरे. Yes. OTT platform, Drive and Dil Bechare. हाँ, तो फिर 3 ही flop है. Yes, that's what I'm saying now. So sir, he. Bhumkesh Bakshi is a semi hit. वो तो है. Hit में list में. So then great. I think then he actually scores 8 out of 11. हाँ, तो Bhumkesh Bakshi is not a flop movie. It's not a flop. चलो, that's good. Maybe I was mistaken. In fact, list में जो flop है वो है केदारनाथ. No sir, केदारनाथ flop में नहीं है. It is not in your list. It is there in the list. As per list, केदारनाथ is a flop. Okay. वो फिल्म क्यों फ्लॉप हुई भाई? भारत हिट हो गई और वो फ्लॉप. भारत हिट, सुपर हिट और ये फ्लॉप. No. मुझे तो मालूम नहीं भैया कौन सी फिल्म हिट होती है, कौन सी फ्लॉप होती है. Sir, it is wrong. Kedarnath is a hit. That you know and I know. Yes. A record doesn't know this. No, record में भी है. Wikipedia में चले जाओ आप. Sir, Wikipedia में चले जाओ, उधर है. वो रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये सुसाइड केस है, तो मान ले क्या? नहीं, अच्छी चीजें मानेंगे ना. वो एग्जैक्टली सच्ची चीजें मानेंगे. सच्चाई तो नहीं नजर आनी ना कहीं. इस केस में यहाँ तो सिर्फ सवाल है. इस केस में 3 चीजें हैं. एक सुशांत,
दूसरी सरकार, तीसरा सवाल, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सुसाइड नहीं है उस पे सवाल, सुसाइड है उस पे सवाल। तो सुसाइड नहीं है ये तो मतलब कि इट्स वेरी क्लियर एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज आफ्टर गेटिंग टू नो सुशांत, नो डाउट अबाउट इट। कौन सा ऐसा सुसाइड होता है जो बगैर सुसाइड नोट के होता है? ये सुसाइड नोट के, जहां सुसाइड नोट नहीं है वहां पे सुसाइड है, और जहां पर सुसाइड नोट है वहां पर अवेटमेंट ऑफ सुसाइड है। ये वाह, ये तो नया डेफिनेशन है। so आप तो लॉजिकली देख रहे हो ना अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, बट आई आल्सो बिलीव दैट आफ्टर गेटिंग टू नो सुशांत, आफ्टर द काइंड ऑफ बुक्स he reads, the kind of life he was leading, it is impossible for somebody I can to also say that because 30th जून का जो प्लान कर रहा हो वो 14 जून को खुद को थोड़ी मार देगा। तो जो 30th जून तक का प्लानिंग करके बैठा हुआ है, इसको मालूम है क्या करना है आगे। exactly